سونیا گاندھی جی، راہل گاندھی جی، ورکنگ کمیٹی کے ممبر صاحبان، AICC کے ممبر صاحبان، بھائیوں بہنوں، کانگریس پارٹی کے ہر سدسیہ کے لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے کسی بھی سیشن کا بہت مہتو ہوتا ہے، لیکن یہ سیشن خاص طور پر مہتوپورن ہے کیونکہ اس سے ہمیں عام چناؤ کے لیے تیاری کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ میں کانگریس ادھیکش شریمتی سونیا گاندھی جی کو یہ سیشن بلانے کے لیے دھنیہ واد دینا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے 18 دسمبر کو کانگریس پارلیمنٹری پارٹی کی بیٹھک میں کہا تھا، کچھ راجیوں میں حال میں ہوئے ودھان سبھا چناؤ کے نتیجے ہمارے لیے نراشا جنک رہے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ہمت ہار جائیں۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم گہرائی سے سوچیں کہ ودھان سبھا چناؤ میں ہم اچھا پردرشن کیوں نہیں کر پائے اور چناؤ کی ہماری تیاری میں کیا کمیاں رہ گئی۔ ایسا کر کے ہی ہم چناؤ کے لیے ایک کارگر نیتی بنا پائیں گے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم 2014 کے عام چناؤ کے لیے ٹھیک سے تیاری کرتے ہیں اور اپنی سرکار کے کام کے بارے میں جنتا کو صحیح جانکاری دیتے ہیں تو عام چناؤ میں ہماری جیت ہوگی، راہل جی کی جیت ہوگی۔ ہمیں جنتا کے سامنے یہ بات رکھنی ہوگی کہ صرف کانگریس ہی وہ پارٹی ہے جو ایک آدھنک، پرگتی شیل اور سمردھ بھارت کا نرمان کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ یہ پارٹی مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، شریمتی اندرا گاندھی، شری راجیو گاندھی کی پارٹی ہے۔ ہمارا اتہاس گوروشالی ہے، ہماری سوچ انکلوسیو اور سیکولر، ہمارے پاس راشٹر نرمان کے کام کرنے کا لمبا انبھو ہے، ہماری سوچ میں ہمیشہ غریبوں اور سماج کے کمزور طبقوں کی بھلائی پر زور رہا ہے، ہمارا ان آدرشوں اور مولیوں میں اٹوٹ وشواس ہے جن کا پالن آزادی کی لڑائی میں ہمارے دیش کے مہان نیتاؤں نے کیا تھا۔ ہمیں جنتا سے یہ اپیل بھی کرنی ہوگی کہ وہ وپکشی دلوں کے ریکارڈ اور دعووں کی بہت باریکی سے جانچ پرکھ کریں۔ جو وپکشی دل سत्ता میں رہے ہیں ان کی سرکاروں کے کام کی تلنا ہماری سرکار کے کام سے کی جائے تو یہ صاف ہو جائے گا کہ کس کا کام اچھا ہے۔ ساتھ ہی ہم کو جنتا کے سامنے کچھ وپکشی دلوں کی سامپردائک اور سماج کو بانٹنے والی سوچ کی بات بھی رکھنی ہوگی۔ ہمیں لوگوں کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ جو بہت بڑے دعوے کچھ وپکشی دل کر رہے ہیں انہیں پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب میں کچھ شبد UPA سرکار کے کام کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ میرا ماننا ہے کہ بھارت نے پچھلے 10 سالوں میں بہت اچھی ترقی کی۔ 2004 اور 2010 کے بیچ UPA سرکار کے پہلے 7 سالوں میں سونیا جی کے نیترتو میں ہماری ارتھ ویوستھا 8.6% سالانہ کی در سے بڑھی۔ یہ کسی بھی 7 سال کی اودھی کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ یہ اپلبدھی
हमने 2008-9 में दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी के बावजूद हासिल की। 2011 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दूसरा दौर आया, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास धीमा हो गया। हमारे आर्थिक विकास की दर पिछले 2 सालों में 6.3 और 5% रही। इस साल भी इसके 5% रहने की आशा है। अगर हम कम आर्थिक विकास वाले 2 सालों को जोड़ें भी, तो भी पिछले 9 साल में आर्थिक विकास दर 7.9% आती है। ये भी किसी भी 9 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। हम अपने आर्थिक विकास को फिर से तेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम कामयाब भी होंगे। लेकिन विकास की गति सिर्फ हमारे देश में कमी नहीं हुई, दुनिया भर में मंदी आई। खराब असर चीन सहित दूसरे विकासशील देशों पर भी पड़ा है। हम ये मानते हैं कि हमारी विकास दर कम करने के लिए कई घरेलू कारण भी जिम्मेवार। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी नहीं मिल पाई। सरकार के अधिकारी फैसला करने में झिझक रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके फैसलों पर सीएजी द्वारा सवाल उठाए जाएंगे। हम इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में कैबिनेट ने 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का रास्ता खोला। हमारी कोशिशों के नतीजे सामने आने लगे हैं, लेकिन इनका पूरा असर होने में कुछ वक्त और जरूर लगेगा। भाइयों और बहनों, हमने अपने काम में समाज के कमजोर तबकों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। हमारी नीतियों और योजनाओं से गरीबों, अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों, महिलाओं और बच्चों को फिर से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचा। पिछले करीब 1 साल से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बराबर चर्चा में रहा। हमारी सरकार ने इस विषय में ठोस कदम उठाए। काम करने वाली जगह पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से निपटने के लिए एक नया कानून बनाया गया। महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए दी जाने वाली सजा को और कड़ा किया गया। 2004-5 और 2011-12 के दौरान गरीबी कम होने की रफ्तार पहले की तुलना में 3 गुना हो गई और गरीबों की कुल तादाद 13.1 करोड़ से कम हुई। मुझे मालूम है कि गरीबी रेखा के मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है, लेकिन हम गरीबी रेखा चाहे किसी भी स्तर पर तय करें, ये सच ही रहेगा कि गरीबी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कम हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ी। इसकी एक वजह यह है कि हम कृषि विकास दर में बढ़ोतरी करने में सफल रहे। अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस सफलता की बुनियाद पर हम खाद्य सुरक्षा कानून बना पाए। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर हुआ। भारत निर्माण प्रोग्राम के मातहत सड़क, सिंचाई, आवास, टेलीकम्युनिकेशन, बिजली और पीने के पानी की सुविधाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना भी बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली मजदूरी पहले के मुकाबले 6 गुना तेजी से बढ़ी। कृषि मजदूरों को इससे फायदा पहुंचा।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों को रोजगार की गारंटी मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से प्रति व्यक्ति इस्तेमाल की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं में पहले के मुकाबले 4 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई ऐसे राज्य जिन्हें पहले पिछड़ा हुआ समझा जाता था, अब तेजी से विकास कर रहे हैं। देश के तेज आर्थिक विकास की वजह से राज्य सरकारों के रिसोर्सेज भी बढ़े हैं, जिससे वो आज आम आदमी की भलाई के लिए ज्यादा कारगर कोशिश कर सकती है। भाइयों और बहनों, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर तीनों स्तरों पर सेवाओं का विस्तार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हमें एक बहुत बड़ी सफलता ये मिली है कि अब हमारे देश के लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। मिड डे मील योजना के तहत करीब 11 करोड़ बच्चों को रोज स्कूलों में दोपहर का खाना मिल रहा है। ये दुनिया भर में इस तरह की सबसे बड़ी योजना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी नई इंस्टीट्यूशंस खोली गई हैं। इनमें 23 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट और 9 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। अपने नौजवानों को रोजगार के अच्छे मौके उपलब्ध कराने के लिए और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। हमारा मकसद है कि साल 2017 तक 5 करोड़ नौजवानों को नई स्किल्स हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने अच्छी प्रगति की है। एड्स की बुनियादी बीमारी देश में स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। इस पर हमें काबू पाने में सफलता मिली। पोलियो पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। मलेरिया का फैलाव कम हुआ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी काफी कमी आई है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई और इसके लिए मैं गुलाम नबी साहब को मुबारकबाद देता हूँ।